ناظرین آداب، پہلی خبر میں آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں۔ خبروں کے ساتھ آپ سب سے روبرو ہوں میں ہنا زبیر، اور ہیڈ لائنز کے بعد اب خبروں کو تفصیل سے جانیں گے۔ حال ہی میں نامعلوم بندوق برداروں کی جانب سے پلوامہ کے جنگلات میں محکمہ جنگلات کے اہلکاروں پر حملے کے بعد محکمہ جنگلات نے پلوامہ کے جنگلات میں حملہ کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا ہے۔ کنزرویٹر فارسٹ ساؤتھ سرکل عرفان علی شاہ کی قیادت میں محکمہ جنگلات اور فارسٹ پروٹیکشن فورس نے مشترکہ طور پر سنگروانی اور اس کے ملحقہ جنگلات میں مشترکہ طور پر پیٹرولنگ شروع کر دی ہے۔ اس موقع پر ڈی ایف او فارسٹ ڈویژن شوپیاں اور رینج آفیسر رومشی رینج کے علاوہ محکمے کے اہلکار موجود تھے۔ فارسٹ کنزرویٹر ساؤتھ سرکل نے اس جگہ کا معائنہ کیا جہاں پر حال ہی میں بڈگام فارسٹ کے 2 اہلکاروں پر نامعلوم بندوق برداروں نے گولیاں برسائی تھیں، اور اس کے نتیجے میں محکمہ جنگلات کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا تھا، دوسرا شدید زخمی ہوا۔ اس موقع پر فارسٹ کنزرویٹر نے کہا کہ حملے سے محکمے کے اہلکاروں کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں اور جنگل اسمگلرز کے خلاف محکمے کی کارروائی جاری رہے گی۔ سرچ اینڈ کامبنگ آپریشنز آج سویرے سے لانچ کیا ہے، اور مختلف جو ٹاؤن ایریاز ہے، چاہے وہ نیوا ہے، روہمو ہے، ٹوکنا ہے، اونتی پورہ ہے، گلزار پورہ ہے، ملنگ پورہ ہے، اور جو اپر ایریاز ہے آپ کے یہاں پہ بوس ہے، یوس ہے، تو ان سب میں جو ہے ناکے لگے ہوئے ہیں اور سسپیکٹڈ وہیکلز کی چیکنگ بھی ہو رہی ہے، چونکہ ابھی ریسنٹلی جو ہے 2-3 دن پہلے کچھ ان نون گن مین نے جو ہے ہمارے ایک لڑکے کو شہید کیا جبکہ وہ فارسٹ پروٹیکشن ڈیوٹیز انجام دے رہا تھا، اور ایک اور فارسٹر ہمارا اس وقت زخمی ہے، ہسپتال میں جو ہے زیر علاج ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے سٹاف کو واپس جو ہے کانفیڈنس دینا ہے، اس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اور یہاں پہ جو ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے دیٹ اسٹینڈس اینڈ دیٹ ول آلویز اسٹینڈ اینڈ وی انشور دیٹ دیٹ ول اسٹینڈ، دیٹ از وائی آئی ایم ہیئر۔ تو ہم آج سویرے 5:15 بجے جو ہے ہم نے یہ آپریشنز لانچ کیے ہیں جو کہ چالو جو ہے رہیں گے۔ این آئی اے اور جموں کشمیر پولیس نے کشتواڑ ضلع میں ملیٹنٹوں کی حمایت اور فنڈنگ کیس کے سلسلے میں چھاپے ماری کی ہے۔ ماروا میں حزب المجاہدین کے دہشت گرد ریاض کے گھر پر چھاپے ماری کی گئی۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی یو اے پی اے ایکٹ کے تحت کی گئی۔ اخنور میں پاک بھارت سرحد کے قریب پنچایت گھڑکال کے گاؤں پتھوکوٹلی میں رہنے والے لوگوں کو قدرت کے قہر کا سامنا ہے۔ گاؤں کے کنارے سے بہنے والے دریائے چناب کا پشتہ ٹوٹنے سے ان کے گھر زیر آب آ گئے۔ سیلاب نے دریا کے کنارے پر بنے باندھ کو تباہ کر دیا جس سے پانی گاؤں میں داخل ہو گیا۔ زمین کھسک رہی ہے، مقامی افراد بے حد پریشان ہیں۔ موقع پر تعینات انتظامی افسران نے بروقت امدادی کام شروع کر دیا ہے۔ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ਕਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਕਟਾਸ ਕਰਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਟਾਸ ਹੈ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਦਾ ਕਈ ਕੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੜੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਟਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਚਾਹੇ 50 ਜਾਂ 60 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਮੀਨੇ ਸਭ ਕਿਲੇ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਟੈਂਟ ਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਗੈਰੇ ਦੇ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਐਸਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਭੇਜਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਦਾ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹਨੀ ਟੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰੇਟ ਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਟ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਕਰੇਟ ਪਾ ਦੇ ਫੜਨਾ ਜਿਹਨੇ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਖਰਕਲਾ 3 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਟਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਹੈ ਕਰੇਟ ਦੀ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮਾਂ 14 ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੋ ਦਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰੇਟ ਪਾ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਟ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਕੋਟਲੀ ਪਾ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਟੀ ਗਏ। ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆ ਸਾਰੇ ਗਏ۔ اسمگلنگ پر قابو پانے کے لیے محکمہ جنگلات نے شوپیاں اور پلوامہ کے جنگلات اور قصبے کے علاقوں میں مشترکہ گشت اور تلاشی کارروائیاں شروع کی۔ چیف کنزرویٹو عرفان علی، فارسٹ آفیسر محمد ایوب اور رینج آفیسر چوہان کے ساتھ باغندر علاقے میں محکمہ جنگلات کے مقتول ملازم کے گھر گئے اور سوگوار خاندان کو تعاون اور مدد کا یقین دلایا جنہیں نامعلوم بندوق برداروں نے قتل کیا۔ محکمہ جنگلات نے اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے۔
सर असली वो संगम का बेस है ये। सब में जो है नाके लगे हुए हैं और सस्पेक्टेड व्हीकल्स की चेकिंग भी हो रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है 2-3 दिन पहले कुछ अननोन गनमैन ने जो है हमारे एक लड़के को शहीद किया जबकि वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ड्यूटीज़ अंजाम दे रहा था, और एक और फॉरेस्टर हमारा इस वक्त ज़ख्मी है, अस्पताल में जो है ज़ेर इलाज है। तो हमें जो है अपने स्टाफ को वापस जो है कॉन्फिडेंस देना है, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। और यहाँ पे जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है दैट स्टैंड्स एंड दैट विल ऑलवेज स्टैंड एंड वी एंश्योर दैट दैट विल स्टैंड, दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। खबर लेह से है, जहां बारिश से आम जिंदगी बेहद मुतासिर है। सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं, जगह जगह कीचड़ भर जाने से लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। इस दौरान तेज बारिश के चलते लेह में होने वाला दलाई लामा का दूसरे दिन का दरस मुलतवी कर दिया गया। इस बात का ऐलान एलबीए की यूथ सदर ने किया। एलबीए की यूथ सदर ने देर रात एक ऑडियो मैसेज के जरिए इस बात की जानकारी दी। खबर कुपवाड़ा से है, जहां काजियाबाद लंगेट के PRES ने महकमा देही तरक्यात पर इल्जाम लगाया कि महकमे ने सरपंचों को उत्तराखंड फील्ड टूर पर रवाना करने के लिए मदऊ किया था, लेकिन दिन भर गाड़ी का इंतजार करने पर इन्हें मायूस लौटना पड़ा। इस तरह से महकमा देही तरक्यात पर सवाल खड़े हो गए हैं कि महकमा पंचायत राज को मजबूत करने में कितना संजीदा है। सरपंचों ने महकमे के इस रवैये पर नाराजगी का इजहार किया और इल्जाम आयद किया कि उन्हें इज्जत देने के बजाय तजलील की जाती है। उधर असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट हिलाल अहमद मीर ने इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि गाड़ी दस्तयाब थी। ओतर पे हेथे फोन दोक तुई गो टूर दोक सह गो पे वोक दोक 7 बजे वो तुम हंदवोर अस पे पन गाड़ी कर 7 बजे वत हंदवोर हंदवार पे तुलित कुलगाम पे वोत 7 बजन प्रारान वुक ताम इंतजाम गसान कहीं पे वन अकिस मुलाजमस मे दस अगर तुम यह कर वो तुम ब्रो तुम हेकू गौर कि तुम कित वो योर सह वापस वन रिपीटस मज दपान अगर तुम गुन वनु ती अगर ना तुम गुन कह तेल वनु तुम मे तेल कम खतर आये योर PRES गाजियाबाद पे ओतर वो तुम गो टूरस दोप तैयार रात तमत कोर मे फोन सुबह 7 बजे वात हंदवोर वत पाने हंदवोर हंदवार दोप तुम कुलगाम चौकस मज कुलगाम चौकस मज ये आए गाड़ी तम मज जाय कह अमे दोप तुम प्रो 10 मिनट 10 मिनट पत करो जनाब अनो गाड़ी प्रारव तो गाड़ी आने पे नई गाड़ी 7 बजे 6 बजे पे। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद 6 माह की शिरख्वार हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में मुहर्रम के पहले जुमे को आलमी यौम अली असगर मनाया जाता है। वादी कश्मीर के साथ साथ पूरी दुनिया में ये दिन साल बसाल ज़्यादा अजमत के साथ मनाया जा रहा है। अक़ीदतमंद मुख्तलिफ मजालिस और प्रोग्रामों में अपने कमसिन बच्चों के साथ जाकर 6 माह के अली असगर को याद करते हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। आलमी यौम अली असगर हर साल मुहर्रम के पहले जुमे को करबला में शहीद किए गए 6 माह के शीरख्वार हज़रत अली असगर की याद में मनाया जाता है। शीरख्वार अली असगर नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन के फ़र्जंद थे। वादी कश्मीर में इमाम बारगाहों अज़ा खानों में जगह जगह अली असगर की याद में तकारीब मुनक़िद होती हैं, जिनमें ख़वातीन की कसीर तादाद अपने शीरख्वार बच्चों के हमरा शरीक होती हैं। इस मौके पर माएँ अपने बच्चों को मखसूस सब्ज लिबास पहना कर रखती हैं, जबकि बच्चों के माथे पर लब्बैक या इमाम ज़मा लब्बैक या अली असगर दर्ज होता है। यौम अली असगर के मौके पर हम अपने बच्चों को गोद में लेकर ये याद दिलाना चाहते हैं कि किस तरह अली असगर ने करबला के मैदान में कुर्बानी दी। इसी तरह हम अपने बच्चों को दीन की आबियारी के लिए तैयार करना चाहते हैं। आज जो है यौम अली असगर, ये एक शीरख्वार नौनिहाल बच्चे की याद में जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इसकी कुर्बानी पेश की, और हम आज इस दिन में अपने बच्चों को तैयार करते हैं ताकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो
हम अपने बच्चे को तैयार करते ताकि वो ये नजराना कबूल करे, और हम अपने बच्चों को बचपन से ही इस करबला के लिए तैयार करते, जो कि इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन बातिल के खिलाफ बातिल के खिलाफ अपनी कुर्बानी पेश की, ताकि सारी दुनिया इस कुर्बानी को याद करे। अली असगर की याद में मजालिस आज़ा, जुलूस आज़ा और नोहा ख़्वानी के खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, जबकि माएँ अपने शेरख्वार बच्चों के हमरा आज़ादारी के इज्तिमात में इस अज़्म के साथ शिरकत करती हैं कि आलमी यौम हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से करबला के कमसिन शहीद हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम से तजदीद अहद कर रही हैं कि वो अपने बच्चों को सीरत अली असगर अलैहिस्सलाम के मुताबिक परवान चढ़ाकर इसंदी और इमाम ज़माना हज़रत इमाम मेहदी के रकाब में शरीक होने के लिए तैयार करेंगी। आज आमत यथ दोस पे योम अली असगर के नाव सत मनाने इंटरनेशनल लेवल पे मनाने। अमुक माने कि पन तमाम बच्चे अनमत घरों मज गड़ित तथ खून अली असगरस दिमो न जाय गसन कहें तन वनकन किस इमामस वक्त किस इमामस दपान अगर तम साथ असगर द्राव मंजिल मज वनकन सास बदी असगर चान खतर तैयार, लिहाजा तमे खतर ये आमत वक्त किस इमामस सत बच्चे गरन मज वनकन तरबियत करान तमिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम सिंदिस तम सिंद ज़ुहर खतर तैयार करान, अली असगर तम करबला खतर तैयार करान, यम करबला खतर शीरखार अली असगर, यम करबला खतर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सारी जान निसार कोर, तम खतर सारी करबला पन बच तैयार करान। यह चाहत ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबलास मज दुत पन बचन सोई तरबियत करान। हर एक दुआ गो है कि बच्चों को अली असगर की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। का बहुत इस्तकबाल करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स खवातीन के स्टार्टअप्स को भरपूर मदद फराहम कर रहा है। खवातीन के हाथों तैयार करदा प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है ताकि खवातीन भी बड़े पैमाने पर कारोबार कर सकें। खवातीन के स्टार्टअप्स को जम्मू हाट में अपना स्टॉल लगाने का मौका फराहम किया गया है। ऐसे इक़दाम खवातीन के लिए कितने मुफीद हैं, कितने मददगार साबित हो रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू की पवनी गंडोत्रा कम उम्री से ही पेपर क्राफ्ट में दिलचस्पी लेती आ रही हैं। 4 साल पहले ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद पवनी ने कागज का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीजें बनाने के गुर सीखने के लिए अपना पूरा वक्त सर्व किया। पवनी कहती हैं कि रिश्तेदार और दोस्त उनके काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में आम लोग इस हुनर से वाकिफ नहीं है। 1 महीना कबल डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जम्मू ने पवनी को जम्मू हाट में एक स्टॉल कायम करने का मौका दिया ताकि वो अपनी मसनूआत की एग्जीबिशन कर सके। अब उनका कहना है कि इससे उन्हें अपने फनपारों को फरोग देने में बेहद मदद मिली है। उनकी ये मसनूआत बिक भी रही है। बेसिकली ये सारा काम ही ना मेरा एक अलमारी में बंद था। अभी जैसे कि ये जम्मू हाट में आके एक प्लेटफॉर्म मिला है मुझे कि मतलब यहाँ मैं अपना काम शोकेस कर पाई और लोगों से अप्रिसिएशन तो बहुत मिल रही है कि क्योंकि ये काम बहुत ही नया है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। और मतलब मेरे को अपना पर्सनली मुझे ये काम बहुत पसंद है क्योंकि इसका आउटकम ही बहुत अच्छा आता है और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस काम को देखें क्योंकि पिक्चर्स में इतना पता नहीं लग पाता है। पवनी के अलावा दर्जनों दीगर खवातीन ने भी जम्मू हाट में अपने स्टॉल्स लगाए हैं। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स का एक बड़ा खजाना यहाँ दस्तयाब कराया गया है। ये स्टॉल होल्डर्स अपनी मसनूआत की नुमाइश में मदद मिलने पर
महकमे की बेहद सताइश कर रही हैं। न्यूज 18 से बातचीत में इन खवातीन का कहना यही था कि ऐसे इक़दामात से स्टार्टअप को ज्यादा मुनाफा बख्श बनाने में मदद मिलेगी और रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। ये ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं ये वाला डॉट आर्ट पेंटिंग करते हुए, तो अभी तक जो है मैं घर से सेल कर रही थी, लेकिन वही था कि फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को पता था तो वो लोग खरीद कर ले जाते थे चीज़ें। बट यहाँ आने से जो गवर्नमेंट ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है कि यहाँ आइए, अपना शोकेस कीजिए सारी क्रिएटिविटी, अपने प्रोडक्ट्स, तो उससे जम्मू काफ़ी मेरा जो आर्ट है काफ़ी सेल भी हुआ है। लोगों को पता भी लगा है कि यहाँ पर जम्मू हाट में आकर डॉट आर्ट का जो लोग पेंटिंग और क्रिएटिविटी के लवर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत हो भी चुका है सर, स्टार्ट हो गया हुआ है, क्योंकि मुझे आर्डर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे मेरे आके, जब वो घर जाते हैं ना फिर मेरे को फ़ोन आते हैं वापस और वो आर्डर्स दे रहे हैं मुझे। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जम्मू के जनरल मैनेजर वीरेंद्र कुमार मनियाल ने न्यूज 18 को बताया कि उनका महकमा ऐसे ताजिरों को अपने स्टॉल लगाने का मौका दे रहा है ताकि एक मखसूस मुद्दत तक ऐसे कारोबार करने वालों को मदद मिल सके। यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं ये परमानेंटली हम नहीं देते हैं, ये हम रोटेशन में देते हैं, 1 महीने के लिए या मैक्सिमम 2 महीने के लिए देते हैं, फिर हम नए एंटरप्रेन्योर्स बुलाते हैं ताकि सबको मौका मिले। ये नहीं है कि एक बार जो आ गया तो वही यहाँ पे बैठा रहेगा, वैसा नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि जितने भी हमारे बेनिफिशरीज़ हैं वो सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट तक ही हमने इसको सीमित नहीं रखा है। आप जम्मू प्रोविंस की बात नहीं करेंगे, हम J&K की बात करेंगे, क्योंकि जब अभी आप जाएंगे तो मैक्सिमम जम्मू के जो लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो यहाँ पे अपने स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। उसमें हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडलूम हो गया, हमारे लोकल जो भी प्रोडक्ट्स हैं, बैम्बूज़ के वो प्रोडक्ट्स हैं, फिर ऑरिगेमी जो पेपर वर्क है उसके स्टॉल्स लगे हुए हैं। लेकिन जब सर्दियाँ आएंगी तो हम कश्मीर से भी लोग आते हैं यहाँ पे, वो अपने स्टॉल यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसे इक़दामात से न सिर्फ स्टार्टअप्स को फरोग़ मिल रहा है बल्कि इससे जम्मू कश्मीर के रिवायती फन और दस्तकारी को बढ़ावा भी मिल रहा है। न्यूज 18 के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। न्यूज 18 की टीम लगातार बारिशों के बायस दरिया में आने वाले सैलाब से मुतासरा खानदानों के मसाइल जानने पहुंची। वादी के जंग इलाके में आबाद खानदानों से बात की। इस दौरान मुतासरीन की आंखों में आंसू और अपना घर छोड़ने का गम साफ नजर आ रहा था, जबकि मकामी सरपंच का कहना था कि पहले ही सैलाब से उनकी फसल तबाह हो चुकी है, खानदान हिजरत पर मजबूर है, हुकूमत की जानिब से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि अगर उच्च के किनारे डैम बना दिया जाता तो आज ये सूरत हाल न होती। इतने सब कुछ थोड़े सामने ही है। ये पानी त्री बारी आई है इस बार की, पहले भी आया हा, दूसरी ये त्री बारी आया, पर जो दूसरी बार है ना वो थोड़ा इन्ना नहीं। जे इस बार आए ये काफ़ी हल चुक रही है। इस बार तो साड़ी इन्होंने फसलों के साढ़े घर ही बर्बाद हुई ने। सब कुछ लब्भा दा है, किसी का मन नहीं करता। एक चिड़ी अपना घर बनाती है, जे चिड़ी का घर कोई तोड़ करना तो उसी चिड़ी की बड़ा दुख होता भी मेरा घर तोड़ी दिता है। असी तो इन्ने साल दे अपने घर बनाई जा रहे हैं। खबर गुरेज से, जहां किशनगंगा डैम के मुतासरा कुनबों ने अपने मुतालबात को लेकर खामोशी एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि डैम की तामीर के दौरान मुतासरा कुनबों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज के साथ साथ दूसरे कई वादे किए गए, लेकिन इन वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया। मुतासरा कुनबों ने उनसे किए गए वादों को पूरा करने का इंतजामिया से मुतालबा किया। हमारे पुरअमन एहतजाज का यही मकसद था। बड़न गांव के अंदर आज जो हमने पुरअमन एहतजाज का एहतमाम किया, मेरे पूरे नौजवान जो है जमा किए थे, एक कमेटी भी हमने बनाई
कि सरकार ने जो 2009 में कृष्णगंगा डैम का काम जो शुरू हुआ, उस वक्त हमसे ये वादा किया गया था कि हम आपको सरकारी मुलाजमत या एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज देंगे, लेकिन बदकिस्मती से ना अभी तक वो सरकारी मुलाजमत दी गई या ना एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया गया। और बीच में ये कहा गया कि हमको पाबरवती बेसिस पे मंथली हम आपको देंगे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो भी नहीं दिया गया है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे इन गुजारिशात को मद्देनजर रखते हुए हमारी इस मुश्किल को हल किया जाए। NHPC से मेरी गुजारिश है, DC साहब से और SDM गुरेज से भी गुजारिश है कि इन मसलों से हल किया जाए। हमने आइंदा भी अब लाहे अमल तश्कील दिया है कि अगर सरकार हमारे इस काम पे ध्यान नहीं देगी तो हम धरने के देने पुरअमन एहतजाज के लिए भी हम तैयार हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार 21 जुलाई को मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी ने बताया कि जून तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा थोड़ा घटकर 16,011 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 17,955 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के कंज्यूमर बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम कंपनी जियो इन्फोकॉम का शुद्ध मुनाफा जून तिमाही में सालाना आधार पर 12.17% बढ़कर 4,863 करोड़ रुपए रहा। जियो इन्फोकॉम का जून तिमाही में कारोबार से रेवेन्यू 24,040 करोड़ रुपए रहा। रिलायंस रिटेल ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के लिए शानदार नतीजे जारी किए। चौथी तिमाही के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 58,569 करोड़ रुपए से बढ़कर 69,962 करोड़ रुपए हो गया। तो पहली खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।